Hello everyone. Welcome you all in PK's Academy of Mathematics. This is lecture 4 on differentiation. And in this lecture, we're going to discuss an exercise 1.1. Before that, this is an activity-based problem. In last lecture, we will incomplete it. So firstly complete it. Okay. So here, f of x equal to sin x is there. Then g of x equal to what here? Log x. You have to find out firstly f of g of x. You have to find out firstly f of g of x. So f of g of x. So firstly write down f of what is g of x is there? Log x. Okay. So you have to find out now f of log x. F of log x. So f of log x means f of x means sin x. So f of log x means what? Sin of log x. Sin of log x. Then g of f of x. So firstly, g as it is, what is f of x is there? Sin x. Okay. So g of x equal to log x. Then g of sin x is what? G of sin x is what? Log of sin x. Log of sin x. G of x is log x. So g of sin x is what? Log of sin x. Then now you have to find out f dash of x. So simple is there. F of x equal to sin x is there. So f dash of x is what? Cos x simply. Then g dash of x. G of x is log x. G dash of x means what? 1 by x. Okay. Then d by dx of f of g of x means f of g of x जो आपको मिला है उसकी आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्टली आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे sin of log x. तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसकी आएगी? sin की. So here cos of log x sin की डेरिवेटिव. Then log x की है यहाँ पे तो log x की क्या आएगी? 1 by x simply. Okay. Then d by dx of g of f of x. Okay, so g of f of x is the log of sin x. So firstly, derivative of what? Log. So log of sin x means 1 upon sin x into the derivative of किसकी निकलेगी यहाँ पे sin x की, that is cos x. So cos x upon sin x. Here cos x upon sin x is there. So it's a cot x. Simply it is cot x. Then now d by dx of f of gx at x equal to 1. So you have to find out here d by dx of f of g of x. But that will calculate at x equal to 1. You have calculated that d by dx of f of gx at x equal to 1. So in place of x, put x equal to 1. So cos of log 1 divided by x की क्या है? 1 पे. So log 1. Log 1, you know very well that is 0. So cos 0. Cos 0 is what? 1 divided by 1 equal to 1 simply. Okay. Now, g of f of x की डेरिवेटिव जो है वो आपको निकालना है x equal to pi by 3. तो d by dx of g of f of x कितना आया है आपका? cot x. बट आपको वो निकालना है अभी pi by 3. तो cot pi by 3 is there simply. Cot pi by 3. So what is cot pi by 3? What is cot pi by 3? It's a 1 by root 3. 1 by root 3. Okay. Then इस तरह से आपको एक्टिविटी जो बेस दिया था प्रॉब्लम वो आपको कंप्लीट करना है. ओके. Okay. So move to our exercise 1.1. First problem is differentiate with respect to x. Simple problem in that. The first problem is y equal to x cube minus 2x minus 1 to the power 5. So सबसे पहले आपको दिखाई क्या दे रहा है वही आपको ऑब्जर्व करना है. उसकी डेरिवेटिव सबसे पहले आपको लेना है. तो यहाँ पे बताइए x cube minus 2x minus 1 to the power 5 मींस सबसे पहले आपको पावर देखना है. तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव किसकी निकालोगे? पावर. तो पावर की डेरिवेटिव क्या आएगी? पावर आ जाएगा. पावर में से कम होगा. So 5 is there and 4 is there. Okay. Then into the derivative किसकी निकलेगी? x cube minus 2x. So x cube की कितना है? 3x square. Okay. Minus 2x की 2 आएगी. Complete answer. Okay. Move to our second problem. Same problem is there. Y equal to 2x power 3 by 2 minus 3x power 4 by 3 minus 5 to the power 5 by 2.
So here also, firstly this power is cu. So वो पावर आ गया है, फंक्शन जैसे का वैसे रहेगा, पर पावर में से कम होगी. So 5/2 minus 1, 5/2 minus 1 is 3/2 into the derivative of this function. So here 2 is as it is, x to the power 3/2. तो यहाँ पे x to the power 3/2 में क्या आएगा, 3/2 आगे आएगा, x to the power 3/2 minus 1. तो 3/2 minus 1 कितना होगा, 1/2. Clear? Then minus 3 as it is, x to the power 4/3 is there. So 4/3 आगे आ गया. Then x to the power 4/3 minus 1. X to the power 4/3 minus 1. That is x to the power 1/3. That is x to the power 1/3. ठीक है. So वहां पे 4/3 के बाद अगर आपको दिख नहीं रहा है वहां पे, so x to the power 1/3 है वहां पे. Okay, x to the power 1/3. चेक कर लो एक बार. X to the power 1/3 is there. Okay. So then this 2 get cancelled out. So this is 3. X to the power half. ये तो जैसे का वैसा रहेगा, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है. X to the power half means what? That is root x ना. Root x लिख सकते हो आप यहाँ पे. Then x to the power यहाँ पे देखो तो 3 get cancelled out हुआ है. So वहाँ पे 4 बचेगा. X to the power 1/3 को क्या लिख सकते हैं आप? Cube root of x. So it is the cube root of x. Okay. So इस तरह से आप उसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. Then here y equal to square root of x square plus 4x minus 7. This is your third example. Okay. So dy by dx सिंपल फंक्शन है तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So सबसे पहले दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे, रूट दिखाई दे रहा है. तो रूट x की डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट x. क्लियर. देन x स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी, 2x, और 4x की कितनी यहाँ पे प्लस 4. डन. यहाँ पे देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 निकल रहा है तो निकाल लेते, क्योंकि ये 2 कैंसिल करने के लिए है आपके पास. तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला. तो ब्रैकेट में कितना आएगा, x plus 2 आएगा. तो वो 2 और ये 2 गेट कैंसिल. सो x plus 2 बचेगा. डिवाइड में ये जैसे का वैसे. ओके. देन फोर्थ प्रॉब्लम, y equal to square root of x square plus square root of x square plus 1. Square root of x square plus square root of x square plus 1. Please see here, that is the fourth problem. Okay. So सबसे पहले देखो, सबसे पहले वही ऑब्जर्व करना है कि आपको दिख क्या है. तो यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये मतलब इसे एक फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हो. तो स्क्वायर रूट ऑफ x दिखाई दे रहा है ना आपको. तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डेरिवेटिव क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट इनटू द डेरिवेटिव. इसकी आएगी x स्क्वायर की कितनी, 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. फिर से स्क्वायर रूट है तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस 1 की डेरिवेटिव कितनी, 2x. डन. यहाँ पे ये 2 गेट कैंसिल होता है, कर लो. तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो. ओके. वंस अगेन चेक ऑल दिस प्रॉब्लम. Okay, so let's move to our fifth and sixth problem. In example first, okay, so y equal to what you provided here. We check it. 3/5 cube root of 2x square minus 7x minus 5 to the power 5. So ये सिंपल फंक्शन नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे. ओके. आपको जैसे डिफरेंशिएशन करने के लिए जो सिंपल फंक्शन चाहिए वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो सबसे पहले कन्वर्ट करो आप उसे, देन उसका डिफरेंशिएशन. क्योंकि पावर देखो नीचे में है तो आप उसको ऊपर लेके जा सकते हो. ओके. तो सबसे पहले देखो ये पावर का है, ये क्यूब रूट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट, पावर में 1/3. तो ये 5 पहले से है और 1/3 हो जाएगा तो ये 5/3 होगा. अब 5/3 को मैंने डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर ट्रांसफर किया. 5/3 ऊपर जाने के बाद क्या मिलेगा, -5/3. ओके. सो अब डिफरेंशिएट करोगे 3/5 जैसे का वैसा. पावर आ गया है, आगे ले गए ये जैसे का वैसा -5/3 माइनस 1. तो -8/3 इसके. देन 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव 4x माइनस 7x की -7. तो अब क्या किया मैंने, ये देखो 3 गेट कैंसिल, here 5 गेट कैंसिल, नेगेटिव इज देयर. ओके. सो दिस 4x minus 7 take in front and this power is taken back. ओके.
और once again this negative you can multiply with this, so it becomes 7 minus 4x. 7 minus 4x. So you can write that. Okay. So then this is sixth problem. Y equal to square root of 3x minus 5 minus 1 upon square root of 3x minus 5 to the power 5. Okay. So here, firstly, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? पावर इज देयर, सो पावर पहले आएगा और इसमें से एक घट के वहां 4 आएगा. देन डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 5. सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ x की 1 upon 2 square root of this, बराबर 1 upon 2 square root of this into the derivative of 3x minus 5 is what 3. तो ऊपर आएगा माइनस, यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट है बट ये नीचे है. सो इसके लिए ये स्क्वायर रूट है तो ठीक है, सबसे पहले आप जो पावर है वो नीचे में कभी नहीं रखते, उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. सो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मीनिंग पावर हाफ होता है, ऊपर जाने के बाद कितना होगा? वो माइनस हाफ होगा. सो ये देखो माइनस लिखेगा ऐसा और वो माइनस हाफ आगे आ जाएगा. सो 3x minus 5 to the power minus half minus 1 होगा. Minus half minus 1 and minus 3 by 2 is there into the derivative of 3x minus 5 is what? Okay, इसको आप छोड़ा सकते हैं. This is negative into negative is positive is there. This 3 by 2. So here you can common out 3 by 2 and write down the final answer. So इस तरह से आप लिख सकते हो इसको. इस तरह से उसका आंसर आप लिख सकते हो. So I hope you will clear in example in exercise 1.1 ये जो 1 के total 6 problem है, we have completed that. Okay. Okay. So let's move to now example 2. Differentiate with respect to x. Okay. So first example, please see here. Y equal to cos of x square plus 5. So divide by x. So firstly क्या दिख रहा है आपको? cos. cos की डेरिवेटिव minus sin x square plus 5 और x square plus 5 2x. 2x को आगे शिफ्ट करो, आंसर कंप्लीट करो. Then y equal to square root of e power 3x plus 2 plus 5 divided by dx. सबसे पहले दिखाई क्या दे रहा है आपको? square root of x. तो square root of x की डेरिवेटिव क्या होती है? 1 upon 2 square root of that. Then into the derivative किसकी आएगी यहाँ? e power 3x plus 2 plus 5. e power 3x plus 2 की e power 3x plus 2 और 3x plus 2 क्या आएगी? 3 आएगी. 5 पूरा खत्म है, उसके आंसर उसकी डेरिवेटिव तो 0 है. Okay, so here numerator take numerator and denominator will be denominator. Just complete the answer. Okay, so y equal to log of 10x by 2. इसका का प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में देखा था. सो यहाँ पे देखो सबसे पहले log दिख रहा है आपको, तो log की डेरिवेटिव 1 upon 10x by 2. tan x by 2 की 6 square x by 2 और x by 2 की 1 by 2. Okay, so here in this type of problem, what you do then? It's 1 upon tan and 1 upon tan is cot. Okay, and cot means what? Cos upon sin. Okay, now sec square 1 upon cos square and this 1 by 2 as it is. So this cos and this cos will be cancelled. So remaining factor is what? Let's see here. 2 sin x by 2 into cos x by 2 is there. What is the formula for 2 sin x by 2 into cos x by 2? That is sin x, and 1 upon sin x is what? There cosec x. 1 upon sin x is what? There cosec x. तो इस तरह से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है. ओके, okay, so here example 4, 5, 6 and 7. Okay, so please see here, it's a fourth example. Okay, so y equal to square root of tan root x. So here divide by dx. सबसे पहले दिख क्या रहा है? square root of x दिख रहा है. Okay, इसे x कंसीडर करो. तो square root of x है. square root of x की डेरिवेटिव 1 upon 2 square root of that. Okay, so tan root x there. Tan root x की डेरिवेटिव 6 square root x divided by root x की डेरिवेटिव 2 root x 1 by 2 root x. Okay, then okay, it's a 4, it's a 3. y equal to cot cube log x cube. cot cube x. तो सबसे पहले किसकी निकलेगी? cot cube. Okay, so ये 3 आ गया है पावर का. So 3 cot square log x cube. पावर आ गया कि पावर में से घटता है ना, तो यहाँ पे 3 cot square log x cube आएगा. Then किसकी डेरिवेटिव निकलेगी? cot की निकलेगी. cot की क्या है? minus cosec square log x cube. log x cube.
ठीक है। देन डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? अब देखो अब किस किस की निकाला आपने? सबसे पहले क्यूब की निकाला, देन कॉट की निकाला। अब कौन सा बाकी है यहाँ पे? लॉग बाकी है। तो लॉग एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की क्या आएगी? 3x स्क्वायर, और एक्स क्यूब की क्या आएगी वहां पे? 3x स्क्वायर। ओके, सो हियर this x square get cancelled, so in denominator the remaining factor is what? There x only. So this 3 into 3, that is 9, so this is 9. numerator factor as it is and denominator में भी क्या आएगा आपका? सिर्फ वहां पे x आएगा। ओके, then 5 to the power sin square x plus 3, 5 to the power sin square x plus 3। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबसे पहले आपको दिखाई क्या दे रहा है? a पावर x, a पावर x दिखाई दे रहा है। a पावर x की डेरिवेटिव क्या है? a पावर x into log a, बराबर। देन डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? sin square x plus 3। तो sin square x की बताओ, 2 sin x सबसे पहले, स्क्वायर की 2x, तो 2 sin x, तो sin x की क्या आएगी? cos x। तो 2 sin x into cos x बचेगा, एंड 2 sin x into cos x क्या होता है? sin 2x। तो ये डायरेक्ट sin square x की आप डेरिवेटिव sin 2x लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे sin 2x को मैंने आगे शिफ्ट किया, ये log 5, और यहाँ पे क्या होगा? 5 to the power sin square x plus 3, क्योंकि एक्सपोनेंशियल चीज जो है वो हमेशा आप क्या लिखते हो? लास्ट लिखते हो, ठीक है। एंड दिस इज 7th प्रॉब्लम। ओके, सो इट्स अ cosec root cos x। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? cosec x। तो cosec x की डेरिवेटिव क्या है? माइनस cosec x into cot x, बराबर। अब बची डेरिवेटिव किसकी? रूट cos x की। रूट cos x की क्या है? 1/2 रूट cos x, रूट cos x की 1/2 रूट cos x, और cos x की क्या आएगी लास्ट में? माइनस sin x, और cos x की क्या आएगी लास्ट में? माइनस sin x। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्लीज सी हियर वंस अगेन। Okay, so in example second, this is your 8, 9 and 10 problem. Okay, please listen here properly. The first means 8th example is log of cos x cube minus 5. So y की डेरिवेटिव सिंपली dy by dx। सबसे पहले आपको दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे? log। So log की डेरिवेटिव क्या है? 1 upon x, so 1 upon cos x cube minus 5। then cos की आएगी, cos की सिंपल है minus sin x cube minus 5, और लास्ट में किसकी आएगी? x cube minus 5। x cube की डेरिवेटिव x cube minus 5 तो 0 आएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो sin और cos दिख रहा है, तो tan x cube minus 5, और वो लास्ट की टर्म आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। then y to the power 3 sin square x minus 2 cos square x, 3 sin square x minus 2 cos square x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो e power x दिख रहा है, e power x की डेरिवेटिव e power x सबसे पहले। देन हियर sin square x के अभी एक एग्जांपल आया था, वहां पे देखा था हमने sin square x की डेरिवेटिव 2 sin x into cos x, तो आप डायरेक्टली sin 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 जैसे का वैसा sin square x की डेरिवेटिव sin 2x, ठीक है। देन माइनस 2 जैसे का वैसा cos square x की डेरिवेटिव, तो cos square x की 2 cos x, तो cos x की माइनस sin x, बराबर। देखो यहाँ पे cos square x की डेरिवेटिव cos square x, ओके। 2 cos x जैसे का वैसा 2 cos x सबसे पहले पावर की, तो cos x की क्या है? माइनस sin x। तो ये किसके जैसा लग रहा है फॉर्मूला? वो भी ऐसे ही 2 sin x into cos x, सिर्फ यहाँ पे माइनस x पर, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस sin 2x। इसके बाद अब आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है दो चीजें, sin square x की डेरिवेटिव sin 2x और cos square x की डेरिवेटिव माइनस sin 2x। ओके, सो हियर this negative 2 as it is there, and cos square x की डेरिवेटिव minus sin 2x, so it's plus 2 sin 2x, done। So here 3 sin 2x plus 2 sin 2x, that is 5 sin 2x e power 3 sin square x minus 2 cos square x, as it is। Okay, then this is 10th problem, y equal to cos square log of x square plus 7। तो सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 cos of log x square plus 7, इस पावर आ गया आगे, x square की डेरिवेटिव 2x, तो 2 cos of log of x square plus 7। देन इसकी आएगी cos की माइनस sin, cos की क्या आती है? माइनस sin log of x square plus 7, ये cos की डेरिवेटिव। देन log of x square, log बचा,
cos भी गया, log बचा, log की डेरिवेटिव क्या है 1 upon x square plus 7 और लास्ट में x square plus 7 की कितनी आएगी 2x। तो 1 by 1 आपको निकालना है, उसी को क्या बोलते हो आप कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही इजी है। ओके, और सिस्टमैटिक फॉर्म में उसका आंसर लिखना है, जो आपको लगते है बाद में अप्लाई कर दो और सिंपलीफाइड करो इसे। तो मुझे आगे क्या देगा, ये 2x upon x square plus 7 को मैंने आगे शिफ्ट किया और ये माइनस जो है आगे शिफ्ट किया। देन ये देखो 2 sin x into cos x, मिला फार्मूला फिर से sin 2x का, तो sin 2 x की जगह क्या है log x स्क्वायर। तो सिंपलीफाइड करो, जितना आपको लगता है उतना आप सिंपलीफाइड करते जाओ, ठीक है। Okay, so please see here example 11, 12 and 13. Okay, so 11th example is y equal to tan of cos of sin x. So firstly क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लिख देगा उसका आंसर डिवाइड बाय 3। So firstly tan is there, so tan की डेरिवेटिव क्या है, sec square cos of sin x, sec square cos of sin x, means tan x की डेरिवेटिव sec square x, then cos है, cos की डेरिवेटिव क्या आएगी minus sin of sin x into लास्ट क्या बचा अभी यार sin x बचा, तो sin x की डेरिवेटिव क्या आती है cos x, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके डन, सबसे पहले दिखाया क्या दे रहा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं निकलता डेरिवेटिव लिखते जाना और आंसर फिनिश करना। दिस इज सेक, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, सेक है यहाँ पे, सो dy by dx sec x की डेरिवेटिव, sec x की, तो sec x की sec x into tan x ना, देखो sec x, इसे x कंसीडर करो, तो sec x की क्या है, sec x into tan, so into tan और tan x power 4 plus 4, ठीक है, into the derivative। अब निकली sec की, निकली आपकी sec की डेरिवेटिव निकली sec x into tan x, into the derivative क्या है tan, tan की डेरिवेटिव क्या है sec square x power 4 plus 4, x power 4 plus 4 एंड लास्ट किसकी बचेगी x power 4 की, x power 4 की क्या आएगी 4x cube, x power 4 की 4x cube प्लस 4 की तो 0 आएगी, दैट इज कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे और देखते कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल भी होते नहीं दिख रहा है। यहाँ पे sec के sec मतलब होता है 1 upon cos और tan मतलब होता है sin upon cos, तो नीचे दोनों cos के आते हैं, कुछ कैंसिल होता ही नहीं है, तो अप्लाई करो जैसा है वैसा ही होगा आंसर। ओके, सो हियर नाउ y equal to e to the power log of log x square log x whole square minus log x square। आपको हमेशा मतलब मैंने आपको क्लियर करवा के दिया है कि लॉग के बेस में आप कैलकुलस पढ़ रहे हो यार, सो लॉग के बेस में हमेशा क्या रहता है e, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बेस में उसके e है एक्चुअली, और यहाँ पे देखो ये बेस और लॉग का बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या रहता है, लॉग का फंक्शन रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा log x square minus log x whole square एक्चुअली minus log x square माइनस log x स्क्वायर बराबर। अब इसकी का आराम से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, तो सबसे पहले y की डेरिवेटिव क्या है dy by dx, सो यहाँ पे देखो log x का होल स्क्वायर, सबसे पहले पावर क्या है, सो 2 log x और log x की क्या है 1 by x बराबर माइनस log x स्क्वायर, सबसे पहले log दिख रहा है तो log की डेरिवेटिव क्या है 1 upon x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे देखो ये x और ये x कैंसिल, सो हियर 2 by x इज देयर, 2 by x बचेगा, तो यहाँ पे 2 by x है, तो 2 by x कॉमन निकालो और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका log x minus 1, सो दैट विल बी योर फाइनेस्ट प्रॉपर आंसर। और उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करना है कि आपका फाइनेस्ट आंसर जो है वो अच्छे से आए, ठीक है। Okay, so move to our 14th problem. Y equal to sine of square root of sine root x.
ओके, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा यहाँ पे, लेट्स चेक इट, दिस इज साइन. सो साइन की डेरिवेटिव क्या है, cos ऑफ दिस. वेल देन आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट x. यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x. स्क्वायर रूट ऑफ x की डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस. देन किसकी बची, साइन रूट x की. साइन रूट x की cos रूट x एंड दिस रूट x हैज द डेरिवेटिव 1/2 रूट x. ठीक है, इसको अरेंज करके लिख सकते हो, डिनोमिनेटर की टर्म डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की टर्म न्यूमरेटर में. तो मैंने cos रूट x को आगे लेके गया, तो cos ऑफ रूट साइन रूट x को पीछे ले आया. ठीक है, सो हियर 2 into 2 is 4 एंड आपको अच्छे से पता है ये एक रूट है और ये एक रूट है, तो दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. रूट a into रूट b, दैट इज रूट a. ये यहां पे शिफ्ट किया. ठीक है, चेक कर लो अच्छे से. देन y इक्वल टू log of sec e पावर x. क्या दिख रहा है सबसे पहले, log की डेरिवेटिव 1/x. देन sec की डेरिवेटिव, sec x की डेरिवेटिव sec x into tan x. अब किसकी बची है यहाँ e पावर x स्क्वायर की. देखो log की भी हुई, log की 1/x हुई बराबर, sec x into tan x. बची किसकी है, e पावर x स्क्वायर की, e पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या है आपके बाहर, फाइंड 2x. क्या करेंगे, sec e पावर x स्क्वायर और sec e पावर x स्क्वायर क्या है, गेट कैंसिल. सो हियर 2x e पावर x स्क्वायर और tan e पावर x स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा. ओके ओके, सो 15th problem is completed. 16, 17 and 18 in second. Okay, so y equal to what, log x base to the e square is there. Okay, तो सबसे पहले देखो, is it not a simple logarithmic function, it is log a base to the b form. So what is the formula for that, log a divided by log b. Okay, so here log is square, once again a power is there, so power get transferred to log. पावर कहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, log के पहले शिफ्ट होगा, so that is 2 log. And once again log is what, 1. So log of log x divided by 2 is there. So simple function ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसको आपने सिंपल बनाया by logarithmic properties. ठीक है, so क्या बचा भाई आपके पास, 1/2 log of log x. तो 1/2 तो कांस्टेंट है, log of log x की डेरिवेटिव 1/log x और log x की 1/x. So 1/x log x, 1/x log x आएगा, तो ये 2 जैसे का वैसे, so 1/2x log x. ठीक है, y equal to log of log x, इसका होल स्क्वायर है. तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसकी आएगी, पावर की, तो 2 log of log x. अब एक एक के निकालना, पहले इस log की, तो 1/, ये 2 log आएंगे. देन इस log की आएगी तो 1/, ये सिंगल log आएगा, और लास्ट में log x की क्या आएगी, 1/x. ठीक है, ऊपर में ऊपर लिखो, नीचे के नीचे लिखो, फाइनल आंसर शिफ्ट करो. ठीक है, देन लास्ट प्रॉब्लम इज देयर इन एग्जांपल सेकंड, दैट इज sin square x square minus cos square x square. देखो यहाँ पे आप इसमें डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, कोई बात नहीं, बिकॉज़ sin square x की आपकी डेरिवेटिव पता है, दैट इज sin 2x, एंड cos square x की डेरिवेटिव क्या है आपकी, minus sin 2x. तो उसका यूज करके इसकी छुड़ा सकते हैं. बट थोड़ा सा अगर आप फार्मूला ऑब्जर्व करोगे तो ये इसका फार्मूला है cos square x minus sin square x. तो cos square x minus sin square x का फार्मूला क्या है, cos 2x. तो उसके लिए सबसे पहले cos square आगे चाहिए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव कॉमन निकाला, क्या बचा, cos square x square minus sin square x square. ये किसका फार्मूला है, cos 2x, बट यहाँ पे x square होने की वजह से cos 2x square. आई होप यू विल क्लियर दैट. ओके, सो क्या मिला आपको, minus cos 2x square. अब इसकी सिंपली एक ही फंक्शन है ना, तो माइनस जैसे का वैसा, cos x की डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin, सो माइनस इनटू माइनस प्लस sin 2x स्क्वायर, और लास्ट में 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएगी, 4x. तो 4x को आगे शिफ्ट करो और यहाँ पे क्या आएगा आपका sin 2x स्क्वायर. ओके, सो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 1.1 पे पहले में टोटल 6 एग्जांपल थे और सेकंड में टोटल 18 एग्जांपल थे. आज हमने टोटल 24 एग्जांपल कवर किए. ओके, सो वंस अगेन रिकॉल दैट एवरीथिंग विल रिकॉल इन नेक्स्ट लेक्चर. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग प्रॉब्लम एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.1. ओके, सो
अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज पीके's Academy of Mathematics. Okay, so bye everyone and have a great day to all of you. Please stay home and stay safe.